Myself Nidhi Lal. Today we going to discuss chapter number 3, Nationalism in India, class 10th history. Now start First World War, Khilafat and non-cooperation. Today's topic for discuss the First World War. This impact of First World War very poor and started for 1914. India was under the British rule, and this time of period it led to the huge increase in defense expenditure, and which was financed by war loans. And government in turn increased taxes on individual income and business profit. Very difficult, why are difficult for the common people? Because there was a sharp rise in the prices of goods, which created a great difficulties for the common people, and the war created a demand for industrial goods and caused a decline for imports from other countries to India. And next things ki villagers were forcefully requirement soldiers in the army, and which led to a widespread anger in the rural areas. Again my words repeated, force requirement war in rural areas to supply for soldier. And now firstly discuss increase the defense expenditure, increase in taxes in India also, income taxes were introduced and custom duties were increased. And crops failed in many parts of India in this year. For the 1918 and 1920 and 21 crops failed in many parts of India, and resulting in acute the shortage of food. And according to the census 1921, 12 to 13 million of people 12 to 13 million of people died, and due to the famines and epidemic reason. What reason? Due to the famines and epidemic. Epidemic means Mahamari. See, now next point discuss the First World War. First World War, are you know that through the war is year increased doubling between the 1913 and 1918, and leading to the extreme hardship for the common people. And people hope कि that hardship would end after the war was over. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और war भी over हो गया. But that did not happen. See, Mahatma Gandhi comes into the scene, and Mahatma Gandhi is returned to India in January 1915. As you know that he had come from South Africa, where he had successfully fought the rectus resign and with a novel methods of mass agitation, which he is called the सत्याग्रह. उन्होंने सत्याग्रह से ही इस मास एगेशंस को ख़त्म किया पूरी तरीके से. तो आफ्टर द लर्निंग अबाउट द इनजस्टिस बीइंग डन टू पीपल, ही डिसाइड द फाइट अगेंस्ट देम थ्रू द सत्याग्रह. उन्होंने सोचा कि इस ही लर्निंग को हम इंडिया में भी लाएं. Now see, Satyagraha. What is the Satyagraha? Satyagraha was led on the power of truth. He stressed on non-violence and peaceful demonstration. Now, see, there are 3 Satyagraha organized. उन्होंने 3 सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया. फर्स्ट 1916, 1917 and 1918. 1916 में चंपारण में बिहार में. He traveled to a Champaran in Bihar to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system. और सेकेंड थिंग उन्होंने जो भी हेल्प किया वो पीजेंट की किया, और अगेंस्ट किसके थे वो? अगेंस्ट द ऑपरेसिव द प्लांटेशन सिस्टम. 1916 में he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system. Then in 1917 he organized a satyagraha to support the peasant of the Kheda district of Gujarat. Affected क्या था? Affected by crop failure and plague epidemic, the peasant of Kheda could not pay the revenue. और वो revenue नहीं दे पा रहे थे, और वो चाहते थे कि when were demanding that revenue collection be relaxed, और वो चाहते थे कि हमारा revenue है वो माफ़ कर दिया जाए. In 1918 में महात्मा गांधी went to Ahmedabad to organize a सत्याग्रह movement amongst the cotton mill worker. इस तरीके से उन्होंने 3 ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह, और सक्सेसफुली ये सत्याग्रह मूवमेंट हुआ. नाउ इस सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट से सोचा उन्होंने गांधी जी ने कि 1919 में नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करें. किसके लिए? रॉलेट एक्ट. बट रॉलेट एक्ट क्या है? व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट? नाउ See, the act of authorized the British officer to imprison any Indian political leaders for 2 years without any trial. कोई बिना रीज़न के भी, और वो 2 साल के लिए क्या कर रहे थे?
जेल में बंद कर देते। बाय रीज़न इट गिव्स द ब्रिटिश ऑफिसर को जो बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया था, और इस पावर को टू रिप्रेस एनी पॉलिटिकल लीडर्स एंड पुट देम इन प्रिजन फॉर 2 years। फिर नाउ स्टार्ट द नेशन वाइड सत्याग्रह। क्या हुआ? रॉलेट एक्ट में सत्याग्रह क्या किया? तो नेशन वाइड सत्याग्रह के अंदर रैलीज ऑर्गेनाइज की गई और वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक ऑल्सो, शॉप क्लोज किया गया। फिर अप्रैल 10 अमृतसर में जो पुलिस थी उन्होंने फायर इन पब्लिक के बीच में उन्होंने फायर किया। और आप फर्स्टली हम लोगों ने डिस्कस किया कि रैलीज ऑर्गेनाइज हुई और वेरियस सिटीज़ में वर्कर्स जो थे उन्होंने जब जैसे रेलवे, वर्कशॉप क्लोज, सब कुछ बंद कर दिया। और नाउ सेकेंड थिंग, द क्रश द मूवमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज द मार्शल लॉ। इस तरीके से जो जनरल डायर थे उन्होंने वहाँ पर उन्होंने इस सब चीज़ों को जब देखा कि उन्होंने देखा कि अटैक किया बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन में, इस सब को देखते हुए वहाँ पे जो अंग्रेज़ थे और मतलब जनरल डायर थे उन्होंने एक कमांड दे दिया कि मार्शल लॉ आएगा। मार्शल लॉ मीन्स आर्मी कंट्रोल पावर इन प्लेस ऑफ लोकल पुलिस। इन इमरजेंसी सिचुएशन में पावर चला जाता है किसके पास? आर्मी के पास। जनरल डायर ने कौन सा लॉ लाया? मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ किस सिचुएशन में जाता है? जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो ये पावर किसके पास चला जाता है? आर्मी के पास। तो पूरी तरीके से आर्मी ने कंट्रोल किया। नाउ सी जलियांवाला बाग मस्कार। यहाँ पर क्या हुआ? ऑन द डे ऑफ 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी फेयर था, एक मेला लगा हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। पीपल डिड नॉट नो अबाउट, पीपल को तो कुछ नहीं पता था और बहुत वो आए थे मतलब उस बैसाखी मेले में जलियांवाला बाग इन अमृतसर। ओके, और मार्शल लॉ इज़ बीइंग इम्पोज। और उस टाइम पे आपको पता है कि मार्शल लॉ लगा हुआ था। एंड दे हैव कम देयर बैसाखी मेला एंड अदर्स टू प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट। और जो अदर्स लोग आए थे वो गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। और रीज़न क्या हुआ कि जनरल डायर ने क्या किया? सी जलियांवाला बाग मस्कार में जनरल डायर इज़ ऑर्डर टू क्लोज ऑल एग्जिट गेट। मतलब उन्होंने सारे क्लोज कर दिए बोथ गेट्स, जो एग्जिट था जो जाने के लिए आने के लिए, सारे गेट्स को उन्होंने पूरी तरीके से क्लोज कर दिया। क्लोज द बोथ गेट्स एंड ओपन फायर। और इस तरीके से उन्होंने ओपन फायर कर दिया। ही ओपन फायर ऑन द क्राउड। इतने क्राउड में 100 ऑफ इंडियंस डाई। इतना बड़ा उन्होंने मतलब वर्क किया। और रीज़न क्या हुआ इसके बाद देखिए, द जलियांवाला बाग इंसिडेंट आर यू नो डैट की स्टूडेंट की ऑन अप्रैल 13 क्राउड ऑफ विलेजर्स हु हैड कम टू अमृतसर टू अटेंड द फेयर। कौन सा मेला देखने आए थे अमृतसर में? उन्होंने बैसाखी का मेला देखने आए थे। ही गैदर्ड इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग एंड बी फ्रॉम आउटसाइड द सिटी। और बहुत सारे लोग बाहर से आए थे और बहुत दूर से। और दे वर अनअवेयर फॉर द मार्शल लॉ। उन्हें कुछ भी नहीं पता था क्योंकि सिटी में नहीं था, ये बहुत दूर था और मार्शल लॉ के बारे में वो डिड नॉट नो अबाउट। तो सी ही हैड बीन इम्पोज एंड डायर इंटर्ड द एरिया ऑफ ब्लॉक। उन्होंने एरिया को ब्लॉक किया, क्लोज किया। And at this point he opened the fire on the crowd and killing the hundreds people. His object, as he declared later, was to produce moral effect to create in the mind of Satyagrahi feeling the terror and awe. अब लोगों के बीच में ये आया कि इस अटैक को देखते हुए उनके अंदर उन्होंने ये सोचा कि ऐसा अटैक करेंगे और लोगों के अंदर एक डर सा आ जाएगा। और लेकिन मतलब उनको एक तरीके से उन्होंने डराया, लेकिन ऐसा डराने से वो डरे नहीं इंडियंस। क्या हुआ आगे देखिए। सी लिमिटेशन क्या थी कि लिमिटेशन ऑफ रॉलेट एक्ट कि दो द रॉलेट एक्ट वॉज वाइड स्प्रेड एंड ब्रॉड, गांधी जी फेल्ड वॉज नॉट ब्रॉड इनफ ब्रिंग अबाउट अ चेंज। अब उन्होंने ये सोचा, गांधी जी ने सोचा कि इतना बड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा, कि एक ब्रॉड मूवमेंट करना पड़ेगा जिससे कि मतलब रॉलेट एक्ट जैसा सत्याग्रह जो आज हमारे बीच में है, और क्योंकि वो बहुत लिमिटेड टाउन्स थे और सिटीज़ में था, और इसलिए बट इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ हिंदू एंड मुस्लिम कम टुगेदर। ये तभी सक्सेसफुली होगा जब हिंदू मुस्लिम हमारे क्लोजर होंगे। और देन ओनली वे टू लॉन्च मोर वाइड स्प्रेड एंड इफेक्टिव मूवमेंट वॉज
वॉज टू ब्रिंग द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। तो गांधी जी ने इसी सब को देखते हुए उन्होंने कॉल्ड ऑफ ले लिया, कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। उन्होंने कहा कि अब सत्याग्रह मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हमारे इंडियंस इसमें मारे जाएंगे। और इस तरीके से गांधी जी ने एक ब्रॉड, मतलब उन्होंने सोचा कि एक कुछ भी होगा, ब्रॉड मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब हिंदू और मुस्लिम कम टुगेदर। तो नाउ फिर सो ही डिसाइडेड टू एडवांटेज ऑफ द खिलाफत इशू। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, खिलाफत इशू। तो इस तरीके से आपने देखा कि जनरल डायर ने किस तरीके से इम्पोज किया और कैसे कैसे उन्होंने कितने लोगों को मारा, और इस बैसाखी मेले में उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा और इम्प्रेस किया, अटैक किया। और ये फिर वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारे जो हमारे सत्याग्रह लोग थे उन्होंने स्ट्राइक किया, पुलिस को भी साथ खूब लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ। तो जनरल डायर ने सोचा कि अगर इस तरीके का हम टेरर दिखा देंगे, पीपल्स हमसे डरेंगे, और उनको बहुत मारा गया, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुई, लेकिन इस तरीके से वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे सत्याग्रह। तो फिर लास्ट में गांधी जी को एक कॉल्ड ऑफ करना ही पड़ा। तो कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट उन्होंने वापस लिया, और इस तरीके से फिर उन्होंने सोचा कि गांधी जी ने कि एक बड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा, ब्रॉड मूवमेंट। तब उन्होंने फिर भी ये सोचा कि मूवमेंट तभी होगा जब हमारे साथ हिंदू मुस्लिम एक होंगे, और इस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया खिलाफत इश्यूज़ स्टार्ट किया जाए। तो नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।